Good morning, everyone, once again. And in the last class, we have started the topic something called different methods of measuring price elasticity of demand, in which we have discussed two or three methods. Today, we'll proceed further. But before proceeding further, let me tell you one more thing that Well, I wanted to ask one thing. प्लीज डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन लेट मी फिनिश व्हाट आई वांट टू से है ना। पहले मैं फिनिश कर लूं बेटा, उसके बाद आप बीच में इंटरप्ट नहीं किया करो ऐसे, ठीक है? तो Okay, sir. क्योंकि जो क्लास का रिदम होता है ना वो टूट जाता है, फिर जो मुझे इंपॉर्टेंट बात बतानी होती है वो मिस हो जाएगी। ठीक है, बीच में नहीं पूछना आपने कुछ भी। जब मैं टॉपिक खत्म कर चुका होता हूं तो मैं पूछता हूं ना आप लोगों से, किसी का कोई सवाल है तो पूछता हूं ना आप लोगों से मैं ये। तो यू हैव टू बी पेशेंट समहाउ। ऑलराइट। So, in the last class, we have discussed different methods of measuring elasticity of demand, in which we have covered, I think, percentage method, the point method. We have discussed what is the difference between the point method and percentage method. However, the formula is the same. And then we see what are the limitations of the percentage method. After that, we have discussed the ARC method for measuring price elasticity of demand. And today I'll proceed further. So before proceeding to the total expenditure method, we have to study the relationship between, we have to study one more topic, something called relationship between AR, MR and elasticity. That is what we are supposed to do first. First we will see relationship between AR, MR, and probably TR and elasticity. Basically, it's a relationship between AR, MR, and what do you call it? AR, MR, and elasticity. First of all, we are supposed to see this. Well, we have to mathematically derive this relation. So let's have a demand function. Let us suppose we have been given a demand function. We have been given the demand function, and the demand function is something like Q equals A minus B P, or or uh, or you can treat it something like this. Let's convert it first. We have to convert it. This is the direct form. This is the direct demand function. Let us see, it's given in, let's convert this into the inverse demand function first. Convert to inverse demand function. So inverse demand function comes out to be something like P is equals to A by B minus Q upon A, BB, sorry, B, Q upon B. Well, this will be the inverse demand function. अब डायरेक्ट डिमांड फंक्शन गिवन हो तो हमें पहले इनवर्स में कन्वर्ट करना है, और अगर डायरेक्टली इनवर्स ही गिवन हो तो हमें फिर इनवर्स में कन्वर्ट नहीं करना है। उसका रीजन मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा कि रीजन क्या है, ठीक है, कि ऐसा हमने क्यों किया है। दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू सी। अब इसमें हमने ये कन्वर्ट कर लिया क्वांटिटी, तो दिस कैन बी रिटन एज मोर सिंपली P इज इक्वल्स टू A बाय B माइनस 1 बाय B इंटू में Q. This can be written as. Now let's simplify this function more. Let's more simplify it further. Let us convert it into more simpler form. So let's assume, let small c equals A by B, and
and z equals small z, or you can say z equals 1 by b. Therefore we have p equals c minus zq. Is that okay? Is this okay? Hello? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Now look, this is what we have. अब बेटे अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप सभी लोग कि जो प्राइस फंक्शन ये दिया हुआ है या डिमांड फंक्शन दिया हुआ है c माइनस जेड क्यू, ये इसको हम प्राइस फंक्शन भी बोल सकते हैं एंड डिमांड फंक्शन भी बोल सकते हैं. दैट इज वन एंड द सेम थिंग. दिस इज ऑल्सो द प्राइस फंक्शन एंड द डिमांड फंक्शन बिकॉज it's being suggested at what quantity what would be the price. If this much quantity is being demanded, then what would be the price. Hence it can be considered as the price function. अब आप लोगों ने अपनी 11th-12th क्लास में जब भी आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा है तो उन्होंने पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आज समझ लेंगे कि एवरेज रेवेन्यू जो AR होता है, AR स्टैंड्स फॉर एवरेज रेवेन्यू. AR stands for average revenue. I think someone has joined. AR stands for average revenue. And average revenue is always equals to per unit price. Average revenue is always equals per unit price. That means there is no difference between the average revenue and the price. They are considered to be the same thing. ये दोनों एक ही चीज होती हैं. एवरेज रेवेन्यू और प्राइस का मतलब यही होता है. जैसे मान लीजिए पर यूनिट प्राइस का मतलब होता है, मान लीजिए आपने 10 पेन्स परचेज किए और उन 10 पेन्स के लिए यू हैव पेड ₹150. दैट मीन्स 150 रुपए के आपने 10 पेन खरीदे, तो एक पेन की कीमत यानी कि एवरेज रेवेन्यू कितना होगा? 150 अपॉन में 10, 15 रुपीज. तो अब क्योंकि सेलर को 15 रुपए मिले हैं पर पेन पे, तो उसको हमने रेवेन्यू बोल दिया, और क्योंकि कंज्यूमर पे कर रहा है वही 15 रुपीज, तो उसको हम लोग प्राइस बोल देते हैं. इज दैट ओके? हेलो? तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रेवेन्यू हो गया, और जो बायर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्राइस हो गया. दैट्स व्हाई एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्राइस. इज दैट ओके? हेलो स्टूडेंट्स? Yes, sir. Did you get it? तो इसका मतलब क्या हो गया? एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्राइस. सो दिस इज नथिंग बट AR फंक्शन. दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज AR फंक्शन. एम आई राइट? गॉट इट? इसको हम AR फंक्शन भी बोल सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम डिमांड फंक्शन ड्रॉ करते हैं, जो हम डिमांड फंक्शन ड्रॉ करते हैं यहां पर इस तरह से हम डिमांड फंक्शन ड्रॉ करते हैं. क्या लिखते हैं? ये A B, दिस इज द डिमांड फंक्शन. इसको हम लोग AR कर्व भी बोल सकते हैं. इज दैट ओके? या AR फंक्शन. सो द डिमांड फंक्शन इज ऑल्सो AR फंक्शन, क्योंकि डिमांड फंक्शन क्या बताता है कि डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए पर यूनिट प्राइस कितना पे किया है. ठीक है? और जो पर यूनिट प्राइस हम पे करेंगे दैट इज द प्राइस दैट इज बीइंग रिसीव्ड बाय द सेलर. हेंस इट इज रेवेन्यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेलर एंड द प्राइस पेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बायर. इज दैट ओके? हेलो, समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. तो ये एवरेज रेवेन्यू कर्व भी इसको हम कह सकते हैं जो डिमांड कर्व बनता है. ठीक है? तो अब क्या है, ध्यान से देखेंगे. तो इसका मतलब अब हमारे पास P इज इक्वल्स टू C माइनस स्मॉल z क्यूब, ये हमारे पास इक्वेशन है. तो ये हमारे पास AR फंक्शन है, AR या प्राइस फंक्शन.
Now we are supposed to calculate the TR function. टोटल रेवेन्यू क्या होता है? TR stands for total revenue. Total revenue means sales proceeds. Am I right? टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? सेल्स प्रोसीड्स, कि जितनी भी क्वांटिटी सेल की, उन क्वांटिटीज को सेल करके जो भी प्राइस हमारे पास बचा है, जो भी प्राइस हमारे पास, जो भी रेवेन्यू हमारे पास मिला है, जितना भी पैसा हमें मिला है, तो दैट इज प्रोसीड्स कहलाता है. उसे सेल्स प्रोसीड बोलते हैं या टोटल रेवेन्यू बोलते हैं. तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? टी आर इज इक्वल्स टू होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी. सिंपल सी बात है. कितना टोटल रेवेन्यू रिसीव होगा? वी आर सपोज टू मल्टीप्लाई द क्वांटिटी सोल्ड विद द पर यूनिट प्राइस एट द प्राइस दैट हैज बीन सोल्ड. तो अगर उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन वी विल गेट द टोटल रेवेन्यू. इन दैट केस वी आर गेटिंग व्हाट? टोटल रेवेन्यू. इज दैट ओके? हेलो? Yes, sir. ठीक है. सो दिस इज द टोटल रेवेन्यू. नाउ वी आर सपोज टू, अगर टोटल रेवेन्यू कर्व हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू कर्व दो तरह से ड्रॉ हो सकता है. इसको ध्यान से देखिए. द शेप ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व. लेट मी शो यू द शेप ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व. शेप ऑफ टीआर कर्व. अब टोटल रेवेन्यू कर्व की शेप क्या है? ये डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट स्ट्रक्चर. In which type of market we are being dealing with. Suppose if there is a perfect competition, or we can say if we have the perfectly competitive market. Let me add few pages first, because after that there would be a problem. Let me add few pages. Suppose if we have perfect competition. Now what happens in case of perfectly competitive market? The price is constant. The firms cannot change prices. This is the one of the characteristic feature of what do you call it, the perfect competitive market. So in the perfect competitive market, the quantity sold is something like, suppose 0, then 1, 2, 3, 4, 5, something like this. Now the average revenue or the per unit price is, let us assume 5. 5. So what would be the total revenue? Total revenue would be price into quantity. So this will comes out to be 0, then 5, then 10, then 15, then 20, then 25. Now in case of perfect competition, average revenue remains the constant, or the per unit price remains the constant for the firm, not for the market. Keep it in mind. This is for the firm. That the particular firm, for that firm, the price remains constant, that the firms are not capable enough, or they are not having sufficient say in the market. Individual firm doesn't have sufficient say in the market to change the price. Hence the price is constant in case of perfectly competitive market. So if we draw this curve, total revenue curve, that we have got it from here, then you can see the shape of total revenue curve in case of perfect competition would be something like a straight line, upward sloping straight line. Let's try and draw this. So
this is the quantity, this is the price, and it would be something like from the origin, and it would go straight over here. So the shape of total revenue curve in case of perfectly competitive market is a straight line. Is that okay? Hello? Hello? Yes, sir. ठीक है. Now Yes, let sir. us see if we have the imperfect competition. If the competition is not perfect, now what happens in that case? Well, in case of imperfect competition, well, when I say imperfect competition, that includes the monopoly as well. Monopoly is also a imperfectly competitive market, and apart from perfect competition, all other forms of market are imperfectly competitive markets. Is that okay? So let's see the imperfect competition. Now, in case of imperfect competition, what happens is, if a seller wants to sell the more units of a commodity, then it has to reduce per unit price of that commodity. If it will not reduce the price, in that case he will not be able to sell more units of the commodity. Simple. Reason being, because the competition is imperfect, the different firms have the distinction between their products, and that distinction would be artificial in the sense that the distinction of the product would be in the form of what do you call it, the price, in the form of the shape of the product, size of the product, quality of the product, ब्रांड नेम ऑफ द प्रोडक्ट. कि जो इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है उसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है वो बनावटी होता है, आर्टिफिशियल होता है. कि सैमसंग कंपनी एलजी कंपनी से अपने टेलीविजन को डिफरेंट बता रही है, बट वो टेलीविजन डिफरेंट नहीं है. वो उसके शेप चेंज कर देगी, उसका साइज चेंज कर देगी, उसके कलर कॉम्पोजिशन चेंज कर देगी. आप देखो, अदरवाइज तो मोर और लेस सभी टेलीविजन्स, जितनी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जिस भी ब्रांड नेम से आते हैं, वो सब एक जैसा ही तो काम करते हैं. अब ऐसा थोड़ी है कि एलजी के टीवी पे दूरदर्शन नहीं आ सकता, सिर्फ सैमसंग के पे आएगा. ऐसा भी नहीं है कि एयरटेल का कनेक्शन जो एक्सट्रीम फाइबर का हम लेंगे, या जो भी कुछ उसका डीटीएच कनेक्शन लेंगे एयरटेल का, वो एलजी के टीवी पर तो चलेगा, सैमसंग पे नहीं चलेगा. फंक्शन सारे मोर और लेस वही होते हैं. वो अलग बात है कि जो वर्जन्स होते हैं टेलीविजन्स की अपग्रेडिंग के, वो वर्जन्स अलग अलग हो सकते हैं. हो सकता है कि किसी कंपनी में पहले वो फंक्शन आए, किसी में बाद में आए, बट मोर और लेस वो सभी एक जैसा काम करते हैं. तो जो डिफरेंशिएशन होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड होता है. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वो रियल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता. प्रोडक्ट in the sense as a product that is not different from the other product. This means LG का टेलीविजन सैमसंग के टेलीविजन से डिफरेंट नहीं है, दोनों ही टेलीविजन हैं. दे बोथ आर स्मार्ट टीवी. कोई नाम रख देगा स्मार्ट टीवी, उसमें 2-4 फंक्शन और डाल देगा, तो दूसरा भी स्मार्ट टीवी रखेगा उसको, ठीक है, उसमें उसका नाम कुछ रख देगा, ब्रेविया. सोनी वाले कह देंगे ये ब्रेविया है, दूसरा कह देगा ये कुछ और है, वो कुछ और बताएगा, वो कुछ और बताएगा. तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आर्टिफिशियल होता है. अब वो आर्टिफिशियल होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इसलिए क्या है कि एक फर्म को अगर दूसरी फर्म से अपने प्रोडक्ट की सुपीरियोरिटी बताकर वो सेल करना चाहता है, और सुपीरियोरिटी किस टर्म से बताता है, क्वालिटी की टर्म्स में. और इसी तरह से वो कहता है देखो जी हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बेटर और हम उससे सस्ता भी दे रहे हैं, तो उसको लेसर प्राइस पर सेल करता है रिलेटिवली. तो इसके लिए जो इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है उसमें कोई भी फर्म हुई, वो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है तो उसे पर यूनिट प्राइस जो है वो रिड्यूस करना पड़ता है. इज दैट ओके? हेलो students, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. तो जब मैं पूछूं ना कि समझ में आया या समझ आया है या क्या, तो यस और नो कुछ बोल दिया करो ताकि मुझे एहसास रहे कि यू ऑल आर देयर। समटाइम्स इट फील्स कि मैं अकेला ही बड़बड़ा रहा हूँ। ये देखिए, तो फर्स्ट इसमें 0 हो जाएगा, देन इट वुड बी 10, देन इट वुड बी 18, then it comes out to be 24, I think. Then this is something called 28, then 30, then again 30, then we have 28. If we draw this, if we draw the total revenue, the shape of total revenue function would be something like this. This is total revenue, this is quantity, and the shape would be something like this. It would be somewhat concave. It will increase first, then reaches the top, then start declining. This is total revenue. So you can see the shape of total revenue curve depends upon the market structure. Is that okay? Hello students? Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. यहाँ पर जो हम ले रहे हैं, हम ये लेकर चल रहे हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं, जब हम ये रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है और जो डिमांड कर्व है वो लीनियर है। ठीक है? इज दैट ओके? इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेट अस सी फर्दर। लेट अस सी फर्दर। Sir, I have a question. हाँ, यस प्लीज आस्क। क्या नाम है बेटे? Sir, can you, Sir Vaibhav, हाँ वैभव, बोलो क्या सवाल है? Sir, can you please tell again that why the average revenue is constant in perfect competition? वेल वैभव, आपने 12th में पढ़ी है इकोनॉमिक्स? No, sir. नहीं पढ़ी, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो बेटे, जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है, हालांकि जब आगे चैप्टर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, बट मैं अभी आपने सवाल पूछा है तो मैं बता देता हूँ कि जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है उसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, यानी कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता, यू आर सेलिंग द सेम थिंग, आई एम सेलिंग द सेम थिंग, द अदर्स आर ऑल्सो सेलिंग द सेम थिंग। इज दैट ओके? So Yes, what sir. happens is, the second thing is the number of sellers is so large. That means individual seller does not have that much strength that it can change the price. कि भाई मान लीजिए मैं भी उसी सामान को बेच रहा हूं और आप भी उसी को बेच रहे हैं और दुनिया भर के लोग उसी सामान को बेच रहे हैं, यानी कि जो सप्लाई है उसकी कमी नहीं है मार्केट में, जितनी चाहे उतनी सप्लाई है। तो एक सेलर कल को अगर एग्जिट करता है ये धमकी देकर, या मतलब कि इस तरह का कहता है कि भाई मैं तो सेल नहीं करूंगा, कल को मार्केट क्रैश करेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो इंडिविजुअल सेलर के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो इसलिए वो इंडिविजुअल सेलर इन रिलेशन टू द मार्केट, in relation to the all the sellers that are present in the perfectly competitive market is not capable enough of changing the price. हाँ, मार्केट फोर्सेस चेंज कर सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल कोट करता हूं, सपोज करो आपकी क्लास है, आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, कौन से सेक्शन में हो आप? Sir, section B में. नहीं, वो तो जी के सेक्शन बी में हो। वैसे जिस कोर्स में आप पढ़ाई करते हो, कौन से कोर्स से हो आप? Sir, maths honors. मैथ्स ऑनर्स में। कितने स्टूडेंट है आपकी क्लास में? Sir, 50. 50 स्टूडेंट्स हैं। सपोज करो मैडम आपका टेस्ट रख रही हैं कि भाई टेस्ट लेते हैं बच्चों का, और टेस्ट लेते हैं 15 तारीख को। आप अकेले कहोगे कि मैडम मेरा टेस्ट मत लीजिए 15 को, मेरे को कुछ काम है, तो क्या वो टेस्ट की डेट चेंज हो जाएगी? No, sir. क्यों नहीं होगी? क्योंकि देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। टीचर हैज टू लुक आफ्टर एवरीवन। एवरीवन मींस द मेजॉरिटी रूल विल प्रिवेल, कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, टीचर इज सपोज टू लुक आफ्टर द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। अब एक स्टूडेंट कहे कि नहीं उस दिन नहीं लेना, बाकी सब कह रहे लेना है, तो क्या काम होगा? वो टेस्ट लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा सर। नहीं लिया जाएगा। अगर सब स्टूडेंट कहेंगे तो हाँ हमें तो लेना है, और एक स्टूडेंट कहेगा मुझे नहीं देना उस दिन टेस्ट, हाँ, तब तो इफेक्ट पड़ेगा सर। है ना? अगर सब कहेंगे लेना है तो हो जाएगा टेस्ट, है ना? तो
अब सपोज करो ये 50 स्टूडेंट्स थे, सपोज करो मैथ्स ऑनर्स में जिस सेक्शन में आप पढ़ते हो उस सेक्शन में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट होते हैं, 50 की Yes, sir. जगह 2 स्टूडेंट होते, और फिर 15 तारीख को तय करना होता, तो बताओ फिर एक बच्चे के मना करने पर या दोनों के कंसेंसस ना बनने पर डेट चेंज होती या नहीं होती? होती सर, 2 कहते तो। नहीं, दोनों के केस में हो सकती है ना कि टीचर कहती है चलो ठीक है फिर तुम भी उस दिन दे देना, क्योंकि एक ही बच्चे को कन्विंस करना था। हेलो, यस सर, यस ठीक सर, है। यस। तो मतलब क्या हुआ कि जब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन एनी इवेंट बहुत ज्यादा होते हैं तो उस टाइम पर एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है बार्गेनिंग की। मेरी बात समझ Yes, में आ sir. गई? और अगर पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कम है किसी भी इवेंट में, तो उस इवेंट में उस इंडिविजुअल जो पार्टिसिपेंट होता है उसकी बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। इंडिविजुअल की कह रहा हूं, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। तो सेम यही सिचुएशन होती है वहां पर कि नंबर ऑफ सेलर्स इतने ज्यादा होते हैं कि एक सेलर के दाम बढ़ाने से बढ़ेंगे नहीं और घटाने से घटेंगे नहीं। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। समझ में आया? बाकी सबको आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो दैट इज द रीजन, Yes, sir. दैट्स व्हाई अब अगर सभी सेलर्स यानी कि पूरी की पूरी मार्केट के सेलर्स यानी कि पूरी की मार्केट की सप्लाई अगर चेंज होती है, एक इंडिविजुअल फर्म से नहीं, अगर पूरी मार्केट की सप्लाई अगर चेंज होती है तो प्राइस चेंज हो जाएगा। मार्केट फोर्सेस तय करेंगी प्राइस कब चेंज होगा कब नहीं करेगा, इंडिविजुअल सेलर तय नहीं करेगा। परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, हेलो। यस सर। अच्छा, एक बच्चा और था जो सवाल पूछ रहा था, वो आप पूछ लीजिए। अब बताइए किसने क्या सवाल था आपका? कोई गर्ल थी, क्या नाम था उसका? बेटे प्लीज डू आस्क व्हाट यू वर आस्किंग एट दैट टाइम। हेलो, स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. हु वाज दैट गर्ल? Yes, sir. हाँ, क्या क्या नाम था बेटे? कौन पूछना चाह रहा था बच्चा वो उस टाइम? Okay, well in that case let's proceed if nobody is asking. So this is the total revenue. Is that okay? Let us see the marginal revenue. Now comes the marginal revenue. Marginal revenue is change in total revenue with respect to change in quantity sold. Marginal revenue is nothing but change in total revenue with respect to change in quantity sold. कि क्वांटिटी सोल्ड में चेंज आने से जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आया दैट इज द मार्जिनल रेवेन्यू। तो इसको हम कैसे मेजर करते हैं? यहां पर अगर मार्जिनल रेवेन्यू इसमें हम कैलकुलेट करें कि टोटल रेवेन्यू में चेंज कैसे होंगे, जो न्यू में से ओल्ड को माइनस कर दो तो ये 5 आ गया, 10 में से 5 गए 5, 15 में से 10 गए अगेन 5, 20 में से 15 गए 5, 25 में से 20 गए देन अगेन 5। तो देखो एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट है 5, एवरेज रेवेन्यू भी कांस्टेंट है, और इनफैक्ट परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू इक्वल है मार्जिनल रेवेन्यू के। एम आई राइट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Now, let us see in this case what happens in this case. In this case, marginal revenue again we are supposed to calculate. This will be 0 or this will be nothing, nothing or 0 you may write. Okay, right. So let's mark a dash over here. Then 10 minus 0 is again 10, then 8, then it comes out to be 6, then comes out to be 4, then 2, then 0, then minus 2. Am I right? Hello? Yes, sir. Now look, Yes, sir. in each case, at each point, average revenue is greater than marginal revenue in case of imperfect competition. Look,
हर पॉइंट पर एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू ज्यादा है किससे? मार्जिनल रेवेन्यू से। ये देखो इन पर भी, इन सभी पॉइंट्स से। तो एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन होता है किससे? मार्जिनल रेवेन्यू से, जिसमें इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। इज दैट ओके? हेलो, क्या ये समझ आया बेटे आप लोगों को? ठीक है। यस सर। अब हम डिराइव करते हैं रिलेशनशिप आगे फर्दर। अब तीनों कंसेप्ट हमने देख लिए, अब रिलेशनशिप डिराइव करते हैं। लेट अस derive the relationship now. So we have price is equals to C minus ZQ, and then we are supposed to calculate total revenue. This would be price into quantity, or total revenue comes out to be from P. Instead of P, in place of P, sorry, we are supposed to substitute this C minus ZQ into Q. This would be the total revenue. Simple mathematics we are applying. Or TR is equals to C into Q minus ZQ square. Now we are supposed to calculate marginal revenue. Okay, marginal revenue is something called differentiation of total revenue with respect to quantity. If you differentiate this equation with the quantity, you will get C minus 2ZQ. Am I right? Hello? Yes, sir. Yes sir. So MR is C minus 2ZQ. This is the MR function and this is the AR function. Now, अभी तक हमने इनके बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं किया, इस्टेब्लिश नहीं किया है, बट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने से पहले मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोग को कि ये देखो, प्राइस फंक्शन ए आर फंक्शन जो है हमारे पास वो है P इज इक्वल्स टू C माइनस ZQ, वेयर Z इज द स्लोप पैरामीटर. प्लीज पार्टिसिपेट. दिस इज द स्लोप इन केस ऑफ AR कर्व. एंड look at this. In case of MR curve is something like C minus 2ZQ. So this is the slope of MR curve. So you can clearly see the slope of MR is twice the slope of AR. Therefore, slope of MR curve is twice the slope of AR curve. इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि MR curve would be halfway of AR curve in case of linear demand function. मतलब कि अगर डिमांड फंक्शन लीनियर है, अगर डिमांड फंक्शन लीनियर है जैसा कि हमने अभी ड्रॉ किया था, लीनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन है. लेट मी शो यू फ्यू फिगर्स. व्हाट डज दिस मीन? अगर डिमांड फंक्शन लीनियर है, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन है. This is quantity and this is price, or you can say R. R stands for revenue, or you can write AR, or you can write MR, whatever you want to write. You can write either things. तो अगर मैंने ये डिमांड फंक्शन बनाया है, अगर डिमांड फंक्शन मेरा ये है A और B, तो जो MR कर्व बनेगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, MR कर्व जो होगा वो इसके हाफ वे जाएगा. हाफ वे से मतलब MR कर्व का स्लोप इसके स्लोप से डबल होगा, स्टीप होगा, यानी कि ये MR फंक्शन है. तो हाफ वे का मतलब क्या है बेटा, इसको समझिए आप जरा. हाफ वे का मतलब है कि जो हॉरिजॉन्टल डिफरेंस आप देखोगे, यानी कि अगर ये पॉइंट है, ये A हो गया, इसको A नहीं लिखते हैं, लेट्स give some other number to this. Let's point out the number. This is 1, this point is
2 and let me mark this point as 3. तो इसका मतलब हो गया कि MR का जो स्लोप है वो AR से डबल है और जो MR कर्व है वो हाफ वे है AR कर्व. होल्ड ऑन, ये सिस्टम थोड़ा हैंग हो गया शायद. हाँ, तो हाफ हो गया. ये AR फंक्शन है और ये MR फंक्शन है. तो इसको किसी भी पॉइंट से आप देखोगे, अगर लीनियर डिमांड कर्व है तो ये हाफ वे होगा, यानी कि दिस डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस. इस पॉइंट से भी दिस डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस. दिस इज व्हाट इट मीन्स. आप इसको आप जैसे मर्जी बना लीजिए. अब लीनियरिटी में जैसे मर्जी बना लीजिए. जैसे ये तो मैंने थोड़ा स्टीप बनाया, अब थोड़ा फ्लैट बना के देखते हैं. फ्लैट बनाते हैं. लेट अस सी. Well, this is price. Let's have the demand curve somewhat flatter demand curve. We have, sorry, straight line नहीं बन रहा. Let me try and draw the straight line demand curve. Well, suppose this is the straight line, somewhat flatter demand curve, or this is AR function. Then the corresponding MR function would be flatter either, but the slope, still the slope of this MR function would be twice the slope of this AR function. This is MR. If you draw horizontal line from any point, you will see the difference, the distance from this point to this point. Let me mark it 1, then again this is 2, then again 3. This distance would be equal to this distance. At any point you can see this distance would be equal to this distance. Same, this distance equals same here, even at this point this distance equals this distance. Is that okay? Hello? Yes, sir. तो ये मतलब है इसका. अभी तक हमने इलास्टिसिटी के साथ AR, MR और इलास्टिसिटी इन तीनों का रिलेशन नहीं बनाया, बट इस्टेब्लिश नहीं किया. बट ये हमने अभी पहले AR, MR के नेचर को समझने की कोशिश की है, ताकि जब हम इनका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे मैथमेटिकली, वो हमें ज्यादा समझ में आएगा और उसको फिर हम ग्राफिकली भी देखेंगे. इज दैट ओके? हेलो सर एक डाउट है. हाँ बोलो प्लीज. सर इधर नाम क्या है बेटे MR आपका? और नाम सर क्या? दीपाली. हाँ दीपाली बोलो. सर यहाँ आपने ऊपर कहा कि MR का जो स्लोप होता है वो AR के ट्वाइस होता है. हाँ, तो सर MR का फ्लैटर ज्यादा क्यों नहीं है? मैं समझा नहीं. सर क्योंकि MR का स्लोप AR से ज्यादा है, तो वो AR से ज्यादा फ्लैटर नहीं होना चाहिए सेकंड फिगर में? अब ये देखो बेटे, जो चीज आपको मेरे ख्याल से फिर वो कंसेप्ट में आप कंफ्यूज कर रहे हो. देखो इधर, जो चीज जितनी वर्टिकल होगी, अब मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है बेटे? दीपाली, हाँ जी, हाँ जी. जो हाँ जी, चीज सर. जितनी वर्टिकल होगी स्लोप उतना ज्यादा होगा, ठीक है? और ठीक है, जो सर. चीज जितनी हॉरिजॉन्टल होगी स्लोप उतना कम होगा, ठीक है? यानी कि ठीक है. जो स्टीप होते हैं, स्टीप कर्व होते हैं, स्टीपर द कर्व हायर द स्लोप, फ्लैटर द कर्व लोअर द स्लोप, ठीक है? तो Yes, अगर दीवार का स्लोप ज्यादा होता है फर्श के, फ्लोर के स्लोप से, ठीक है? यस सर. तो इसको इस तरह से दिमाग में रखो कि जो चीज जितनी स्टीप है स्लोप उसका उतना ज्यादा है. फ्लैटनेस के साथ स्लोप कम होता है, ठीक हाँ है? जी सर. स्टीपनेस के साथ स्लोप बढ़ता है. तो आप उल्टा बोल रहे थे, ठीक है? ठीक है सर. अब ठीक है. देखो, जो MR कर्व है वो AR कर्व के रिलेटिवली स्टीप है. हाँ जी यहां सर. पर भी ये रिलेटिवली स्टीप है. भाई देखो, हम कहते हैं कि ये बड़ा है, एक छोटा है, तो बड़ा छोटा कोई वैसे रियलिटी में कोई चीज बड़ी या कोई चीज छोटी थोड़ी होती है, ठीक यस है? सर. रिलेटिवली होती है. भाई नीडल के रिलेटिवली पेन इज बिग, और यू कैन से Yes, sir. द लार्जर,
इन साइज, Yes, sir. बिगर इन साइज। बट आप अगर क्या कहते हैं कि अगर कोई वाइपर लो, तो वाइपर के रिलेटिवली पेन का साइज क्या है, स्मॉल और बिग? स्मॉल हो गया सर। तो फिर पेन स्मॉल रहा, पेन को हम कहें कि पेन स्मॉल होता है या बिग होता है, क्या कहेंगे उसको? सर छोटा बड़ा कह ही नहीं पाएंगे हम तो उसे। कुछ नहीं कह पाएंगे ना, क्यों? क्योंकि वो रिलेटिवली है, वो इन कंपैरिजन टू समथिंग है। तो यहां पर भी जो हमने ये स्टीपनेस बोली है, तो वो रिलेटिवली बोली है स्टीपनेस। हमने ये नहीं बोला कि एमआर कर्व विल ऑलवेज बी स्टीपर, हमने बोला एमआर कर्व विल बी ट्वाइस स्टीपर देन द एआर कर्व। इज दैट ओके? यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, क्या नाम है बेटे? सर ये एमआर करके आपने इक्वेशन कैसे निकाली है? बेटे नाम क्या है आपका, पहले नाम बताइए। सर साहिल गर्ग। साहिल गर्ग। कौन से कोर्स से हो आप? सर बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स। मैथमेटिक्स पढ़ा है 12th क्लास में? यस सर। डिफरेंशिएशन का चैप्टर पढ़ा है? यस सर। अब इधर देखो जरा, इधर देखो कि अगर आप ये टी आर की इक्वेशन है, अगर आप टी आर को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू क्यू, सॉरी, तो क्या आएगा आपके पास? करिए डिफरेंशिएट इसको क्यू की रिस्पेक्ट यस में। सर। सर आगे समझ सर। ठीक है, हाँ जी सर। चलिए। तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को? हाँ, तो हमने अभी रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं किया। अभी तो हमने नेचर समझा, ए आर एम आर का, टी आर का नेचर समझा हमने, ताकि जब हम इनको कंबाइनली रिलेशनशिप में समझेंगे तो हमें आसानी से समझ आएगा। तो लेट्स ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एम आर एंड इलास्टिसिटी। ओके, well, let us have the P equals something like C minus ZQ, then TR would be equals to P into Q. Got it? अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ट्रिक चलेंगे कि हम इस फंक्शन को सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, फंक्शन को सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे, हम सीधा रिलेशन ड्राइव करेंगे। कैसे? अगर मुझे एम आर कैलकुलेट करना है तो एम आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा टी आर अपॉन में डेल्टा क्यू। ठीक है, इसका मतलब हो गया डिफरेंशिएटिंग पी इंटू क्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैथमेटिक्स में आप सभी ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा आई होप, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो अगर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो उसको हम करते हैं, तो एम आर वुड बी समथिंग लाइक पी प्लस डी पी अपॉन डी क्यू इंटू में क्यू। आई थिंक दिस वुड बी द डिफरेंशिएशन। हेलो, एम आई राइट? प्रोडक्ट रूल से हमारे पास ये आ जाएगा पी इंटू क्यू का डिफरेंशिएशन। ठीक है, Yes, sir. अब इसको थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं कि वी हैव एम आर कर्व समथिंग लाइक दिस। एम आर इज इक्वल्स टू है पी प्लस क्यू इंटू में डी पी अपॉन डी क्यू। अब मुझे किसी तरह से इस चीज की वैल्यू निकालनी है कि ये इलास्टिसिटी से या इनमें से कोई भी चीज इलास्टिसिटी से कैसे रिलेटेड है। लेट अस सी दैट। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन क्यू इंटू में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। एम आई राइट? हेलो स्टूडेंट्स, एम आई राइट? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Now suppose if I take this price to this side, I'll have E upon P is equals to dq upon dp into में 1 upon q। ठीक है, is that okay? Hello, is that okay students? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Now let's taking reciprocal of this, taking reciprocal of the above equation।
what we get, P upon E equals Q into में dP upon dQ. Is that okay? Now look, this equals this. These are the same thing. So let us mark these equation as this is the first, and let me mark it as second. Now look, one more thing you are supposed to see here. One thing that you need to keep it in your mind while substituting these values. And that thing is elasticity is always negative. Do you agree or not? Because there is inverse relationship between price and quantity demanded, hence the elasticity's answer would be negative. So this would be negative here. तो अगर तो इलास्टिसिटी नेगेटिव हमने लिया तो एम आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा P प्लस में विद इन ब्रेसिस माइनस P अपॉन ई होगा ये एक्चुअल में, क्योंकि इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव आती है तो ये इस तरह से होगा. और you can write it something like this, mr is equals to P minus P upon E, or you can write mr is equals to P is common 1 minus 1 upon E, or you can further write it down like this, mr is equals to AR, because P and AR are the same thing, within braces 1 minus 1 upon E. Or you can also proceed further from here onwards. How? Let us see. MR equals AR minus AR upon E. Now let's take this MR to the left hand side, and we will have MR minus AR is equals to minus AR upon E. Or you can write this, let's take this AR to the left hand side along with its sign. So we will have 1 upon E equals minus MR upon AR plus AR upon AR, or you can write 1 upon E equals AR minus MR upon में AR. Am I right? Hello? Yes, sir. ठीक है. Or simply we can write like this, taking reciprocal. So we'll get E equals AR divided by AR minus MR. बेटे इतना समझ में आया आप लोगों को? हेलो? Yes, sir. ठीक है. अब ये जो रिलेशन इस्टेब्लिश हमने किया है इलास्टिसिटी AR और MR में, ये रिलेशनशिप कब आया? जब इलास्टिसिटी में हमने ये एज्यूम किया है कि भाई ये नेगेटिव, एज्यूम क्या किया कि ये नेगेटिव ही होती है. सपोज करो अगर कई बार ये रिलेशनशिप कुछ दूसरे तरह से भी आ सकता है, दूसरी फॉर्म में भी आ सकता है. लेट मी शो यू दैट थिंग ऑल्सो. Suppose instead of taking or considering elasticity to be negative, let's take the absolute value of elasticity. अगर elasticity की हम absolute value लें, अगर मैं इस elasticity के फॉर्मूले को ऐसे लिख दूं कि E absolute within modulus, अगर मैं ऐसे लिख दूं P upon Q into delta Q upon delta P, well in that case P upon this is equals to Q into delta P upon delta Q. Am I right? Hello? This would be the situation. If I'll substitute this over here, suppose this is the third equation. If I'll substitute in case third is substituted into first, we get MR is equals to P plus P upon E मॉडुलस. तो यहाँ ये साइन चेंज नहीं होगा, ये प्लस का ही रहेगा. उस केस में ऐसे ही ड्राइव कर देंगे हम रिलेशन इसी की तरह, इसी से
ड्राइव करेंगे रिलेशन. लेट मी ड्राइव इट फॉर ऑल ऑफ यू. Let me try this. So MR is equals to AR plus AR upon में modulus E, or you may write it MR minus AR is equals to AR upon में modulus E, or modulus E equals AR upon में MR minus AR. This would be the relationship. Look at this. The only difference is that here the elasticity is being within the modulus sign, and instead of denominator is being changed, instead of AR minus MR we are taking MR minus AR. साइन चेंज हो गया, अब साइन डिफरेंट होगा. इसी तरीके से इस रिलेशनशिप को हम जब मॉडुलस में लेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. MR इज इक्वल्स टू P कॉमन 1 प्लस 1 अपॉन E मॉडुलस. ठीक है. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं MR इज इक्वल्स टू AR विद इन ब्रेसेस 1 प्लस 1 अपॉन E मॉडुलस. इज दैट ओके? हेलो स्टूडेंट्स, ये समझ आया? यस सर. क्या आप सभी को समझ आया ये? कोई डाउट, कोई सवाल पूछना चाहता आप में से कोई इससे रिलेटेड? यस. हेलो स्टूडेंट्स, कोई सवाल पूछना चाहता आप में से कोई इन सब से, इस सब से रिलेटेड? नो सर. तो आज फिर इतना ही करते हैं. आज हमने ये मैथमेटिकली ड्राइव कर लिया है रिलेशनशिप बिटवीन AR, MR एंड इलास्टिसिटी. एंड tomorrow morning we will see further how graphically we can represent this relationship and what are the implications of that. कल हम वो पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.